asking about the sharing the audio, na? sharing the audio for meditation. Yeah, Actually, my son can help you out if you want later during the day when you are yeah, free, can yeah, speak to you. yeah. After the session, if he is free, he can give me a call. And Not immediately, maybe his workout or something is going on because he's not staying with me. He's okay, staying at a different place, but he will call you up. If you sure, can give sure. me a time when you're free. No, no, he can call me anytime. Okay, then. हाँ, Okay. या लेट्स बिगिन डे 10। अभी आज का दिन जो है ना, हमारा आज की जो चैप्टर है, इट इज ऑल अबाउट हेल्थ। कि हमारे हेल्थ में जहां पर भी इश्यूज हैं, हमने मैजिक में सीखा था कि हमारे हेल्थ में जहां पर भी इश्यूज हैं, वहां पे वी हैव कंप्लेन्स, वी क्रिटिसाइजिंग आवरसेल्फ, वी आर कंप्लेनिंग, वी आर ऑलवेज सेइंग कि मेरे यहाँ पेन है, मेरे वहां पेन है, और यू नो माय वेट इज नॉट रिड्यूसिंग, मेरे नीज में पेन है, या मेरा बीपी कंट्रोल नहीं होता, या मेरी डायबिटीज कंट्रोल नहीं होती। सो वी आर ऑलवेज क्रिटिसाइजिंग एंड कंप्लेनिंग, एंड एक कंप्लेन करने से हम 10 पॉइंट्स नीचे चले जाते हैं, 10 स्टेप्स नीचे चले जाते हैं, विच वी अंडरस्टूड इन दी मैजिक बुक। और उसको अगर हमें अच्छा इंप्रूव करना है अपने हेल्थ को, तो वी लर्न इट दैट ग्रैटिट्यूड इज वन वे ऑफ डूइंग इट। कि आप अपनी हेल्थ के लिए मैक्सिमम ग्रैटिट्यूड देते रहो। एवरी टाइम यू आर मूविंग योर बॉडी, एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी, जस्ट कीप सेइंग थैंक यू फॉर इट। Yeah, that is what we learned in the magic. Now let's see what this book is going to teach us, how to heal our body, how to heal ourselves. Yeah, please continue. Yes. Day 10, loving your body, healing your pain. The lesson today is about pain, what it is, where it comes from, what it's telling you, and what you can learn from it. Many of us live with pain or illness on a daily basis. It may be a small part of our lives, or it may take up a large portion of it. Today, you are going to use your mirror work to open a new door to loving your body and healing your pain. No one wants to be in pain, but if you have it, what can you learn from it? Where does pain come from? What is it trying to tell you? Since pain can be a manifestation of either physical or mental disease, it can clear that both the body and mind are susceptible to it. I recently witnessed a wonderful example of this as I watched two little girls playing in a park. The first child raised her hand to playfully slap her friend on the arm. Before she was able to make contact, the other little girl cried, "Oh!" The first girl looked at her friend and asked, "Why did you say, 'Oh'? I haven't even touched you yet." Her friend replied, "Well, I knew it was gonna hurt." The body, like everything else in life, is a mirror of our inner thoughts and beliefs. It is always talking to us if we will only take the time to listen. I believe we create every pain and illness in our body. Every cell within our body responds to every single thought we think and every word we speak. Okay, pause. So I don't know how many of you have read this book, You Can Heal Your Life. In that book, Lucy has written that for every dis-ease, any discomfort in our body, every illness in our body is caused by thoughts. What kind of a thought are we thinking? And that thought is causing that discomfort in our body. And by
so sorry. By changing our thoughts, उसकी जगह पे हम पॉजिटिव अफर्मेशन करें तो हम अपनी बॉडी को हील कर सकते हैं. Because every cell in our body is responding to our thoughts. और अभी हमने पहले भी देखा कि whatever is happening in our life, the way people are behaving with us, the way things are around us, is only reflection of ourselves. हमारा ही mirroring हो रहा है बाहर. There is no one out there. Similarly, हमारी body में जो कुछ भी manifest हो रहा है, चाहे वो physical pain है, चाहे वो कुछ mental pain है या emotional pain है, जो भी है, it is all caused by our thoughts, which are mirrored, which are experienced by us. क्योंकि हमने पहले भी देखा ना, whatever we think, whatever we say, is whatever is the experience we have in our life. So similarly, whatever you're thinking and saying to yourself, क्योंकि हमें जब भी तकलीफ होती है हम सेल्फ टॉक तो कर ही रहे होते हैं ना, हाय मेरे टांगों में दर्द हो रही है, हाय आज मेरे पैर में पता नहीं क्या हो गया, बहुत ही पेन हो रही, चला नहीं जा रहा. सो व्हाट इज इट? यू आर सेइंग इट टू योर ओन सेल्फ. किसी और को तो बाद में बताते हो, अपने आप से पहले कहना शुरू कर देते हो. सो व्हेन यू व्हाटएवर यू आर सेइंग टू योरसेल्फ, each and every cell in your body is responding to it, and वो रिफ्लेक्ट होता है आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ में. या अब यहाँ पे आपने देखा कितनी बार बचपन में होता था ना कि जैसे हम वो करते थे कि तू डरती है कि नहीं डरती है, या डरता है कि नहीं डरता, हम उसके आगे ऐसे हाथों से कुछ करते थे और वो आंखें ऐसे चपक देता था, देखा डर गया डर गया. हम लोग ऐसे खेला करते थे ना बचपन में. आप लोगों में से किसी ने करा है ये सब? Yes, actually. हाँ, तो हम हम लोग लोग ऐसे खेला करते थे फ्रेंड्स के साथ ना. एंड सिमिलरली आपने देखा होगा जब कई बार ऐसे होता है, कोई माँ अपने बच्चे को मारने के लिए हाथ उठाती है अभी, वो बच्चा आंखें बीच के ऐसे सहम जाता है जैसे उसको लग गई है ऑलरेडी. देखा है कभी आपने ऐसे कि आपने Yes. हाथ उठाया, या आपके सामने किसी ने अपने बच्चे को मारने के लिए सिर्फ हाथ ही उठाया है और वो बच्चा इतना सहम जाता है और आंखें बीच के जोर से आंखें बंद करके और ऐसे सहम जाता है जैसे उसको ऑलरेडी लग चुकी है. So this is what it is talking about. कि there were two girls और उस लड़की ने अभी छुआ भी नहीं है, उसको हाथ ही उठाया है, और दूसरी लड़की ने ऐसे बोला जैसे उसको चोट लग गई है ऑलरेडी. उसने बोला कि मैंने तो अभी कुछ किया ही नहीं. तो she says no, but I expected कि ऐसे होने वाला है मेरे साथ. मुझे लगा कि मेरे को लगने वाली है और इसलिए मैं पहले से ही उसको हाई करना शुरू कर दिया उसने. Now how it is related to our health? Let's read that now. Yeah. Yes. The body is always aspiring to achieve optimum health no matter what we do. However, if we abuse the body with unhealthy food and unhealthy thoughts, we contribute to our discomfort. Pain comes to us in many forms: an ache, a scratch, a stubbed toe, a bruise, congestion, uneasy sleep, a queasy feeling in the stomach, a disease. It is trying to tell us something. Pain is the body's way of waving a red flag to get our attention, a last ditch effort to inform us that something is wrong in our life. Okay, so what it is saying is कि हमारे बॉडी में कहीं पर भी अगर कुछ तकलीफ होती है, it is basically trying to raise a red flag कि कुछ प्रॉब्लम है. I remember I was attending this session by a naturopath, and she says हमारी बॉडी का मैकेनिज्म इतना अच्छा है, वो अपने आप को क्योर कर सकता है, प्लस अपने आप की रक्षा खुद कर सकता है. So I was wondering how. So she says कि अगर आपके नाक में कुछ चला जाता है तो ऑटोमेटिकली आपको छींकें आनी शुरू हो जाती हैं जब तक वो चीज निकल नहीं जाती नाक से. I recently experienced this. मुझे डॉक्टर ने एक नेजल स्प्रे दिया, and I'm not a kind of person who will do such things, but मैंने कर लिया. मैंने कहा चल डॉक्टर ने दिया है तो वो पता नहीं शायद किसी गलत नस में चला गया या क्या हुआ, I don't know. I was sneezing like hell.
मतलब मैं इतनी जोर जोर से छींके मारे जा रही, समझ ही नहीं आ रहा ये छींके आ क्यों रही हैं। एंड आई वाज फीलिंग थोड़ा सा जैसे ना नाक के अंदर जैसे कुछ अंदर ना कुछ अटक गया है। So I suddenly remembered that this is what Dr. Salar Tiwari said कि जब भी हमारे नाक में कुछ घुस जाता है ऑटोमेटिकली हमें छींकें आनी शुरू हो जाती है क्योंकि बॉडी इज टेलिंग यू समथिंग रॉन्ग, कुछ अंदर चला गया है और वो उसको खुद ही निकाल देती है। और अगर आपने कभी सोचा हो देखा हो कभी गलती से हमारे खाने में किसी किसी के बाल चला जाए तो किस तरह से हम लोग परेशान होते हैं जब तक वो निकलता नहीं है ना। तो सिमिलरली दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ इट व्हिच आई जस्ट वांटेड टू शेयर कि मेरे साथ ऐसा हुआ। नेचुरोपैथी में भी वो कहते हैं कि बॉडी गिव्स यू रेड फ्लैग्स। तो ये रेड फ्लैग्स जो है हमारी बॉडी में जैसे जैसे मेरे को खांसी जुकाम हो रहा है तो देयर इज समथिंग व्हिच आई नीड टू एड्रेस। और मुझे बताने की कोशिश कर रही है मेरी बॉडी कि तूने तेरे इस एरिया में या तेरे थॉट प्रोसेस में कहीं यहाँ पर कहीं ना कहीं पर ये कुछ अटका हुआ तेरे दिमाग में, बट आई एम नॉट लिसनिंग टू इट। जब तक आप सुनोगे नहीं वो आपको सुनाता ही रहेगा, जोर जोर से सुनाएगा। अब आप मान लो अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ आप मेरी बात नहीं सुन रहे हो, आप कुछ और करे जा रहे हो, तो मैं आपको बोलूंगी ये सुन ना, तो सुन क्यों नहीं रही है, तो सुन क्यों नहीं रही है, तो यू आर स्टिल बिजी। तो मैं जोर से चिल्लाऊंगी क्या है मैं कब से बोले जा रही हूँ यार, कमाल करते हो तुम, सुनते क्यों नहीं हो। दिस इज हाउ यू डू ना in your real life when somebody is not listening to you. This is how our body also reacts to our not listening to it. So this is what this book is talking about, this chapter is talking about. When wherever you get any symptoms like this, these are red flags that your body is trying to speak to you. Please listen to it. Hanji, padhe. Yeah, Almas, please read. Almas? Yes, sorry. Okay. When we feel pain, what do? We usually run to the medicine cabinet or a drugstore and take a pill. When we do this, we are saying to our body, shut up, I don't want to hear you. Your body will quiet down for a while, but then the whispering will return, this time a little louder than before. Imagine what would happen if you were telling your friend something important, but she wasn't listening. You would say it again, probably louder. If she still didn't listen, you might well become agitated and lash out. Or feeling hurt and unloved, you might shut down. Sometimes people actually want to be sick. In our society, we have made pain and illness a legitimate way to avoid responsibility or unpleasant situations. If we cannot learn to say no, then we may have to invent a disease to say no for us. Okay, pause. Now what it is saying is that whenever there is a pain or something in the body, हम लोग क्या करते हैं, वी रश टू द डॉक्टर और जाके दवाई ले लेते हैं और उसको दर्द को कम करने की कोशिश करते हैं, उसको समझने की कोशिश नहीं करते हैं। पर वो दर्द क्या जाती है, आफ्टर सम टाइम इट फ्लेयर्स अप अगेन, वो फिर तकलीफ शुरू हो जाती है एंड फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं और वो सिलसिला चलता ही चला जाता है। Lifelong we keep running to doctors or we keep taking tablets. But what this book is trying to tell you is that if your body is giving you any signal, listen to it. जब तक आप उसकी बात नहीं सुनोगे तो तब तक वो आपको बताएगी कैसे कि उसको क्या तकलीफ है। जब उसकी बात सुनोगे तो आपको समझ आएगा कि कहाँ पर है प्रॉब्लम, रूट कॉज क्या है। रूट कॉज तो कोई आपका थॉट है जो आप बार बार सोचे जा रहे हो, ऊपर से दवाई खा खा के उसको आप शट अप करे जा रहे हो, तो होगा क्या, आफ्टर सम टाइम द मेडिसिन स्टॉप्स गिविंग यू एनी रिलीफ। बहुत जगह पर ऐसे होता है ना, जब किसी को कोई तकलीफ होती है
वो डॉक्टर्स चेंज करते रहते हैं, मेडिसिन चेंज करते रहते हैं, पर उनको कोई भी आराम नहीं मिलता. आफ्टर सम टाइम दे जस्ट गिव अप, वी हैव टू लिव विद इट. When I'm talking about this, I'm talking about myself. You know, मेरा बीपी जब फ्लक्चुएट होता है तो आई कीप रनिंग फ्रॉम डॉक्टर टू डॉक्टर कि मेरा बीपी क्यों नहीं कंट्रोल हो रहा. And after reading this, I'm realizing it. I have not even listened to my body. What is it trying to tell me? कि वो क्या थॉट है जो बार बार मुझे मेरे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर रहा है. वो क्या है जो मैं बार बार सोचे जा रही हूँ. वो क्या है मेरी लाइफ में जिसको मैं फॉरगिव नहीं कर पा रही हूँ, या जो अपने आप को फॉरगिव नहीं कर पा रही हूँ, या कौन सा ऐसा थॉट है जिसको मैं लेट गो नहीं कर पा रही हूँ. बट आई डिडंट इवन लुक एट दैट. आई एम जस्ट गोइंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास, कि मेरे बीपी का कंट्रोल हो जाए. पर होता है क्या? थोड़े दिन होता है, उसके बाद फिर फ्लेयर अप होता है, फिर फ्लेयर अप हो जाता है, बिकॉज वो थॉट तो जा नहीं रहा है. वो थॉट तो मैं बार बार सोच ही रही हूँ ना. आई एम नॉट लेटिंग गो ऑफ इट बिकॉज आई डोंट इवन नो इट, because I don't even listen to my body. If I listen to my body and I know what is it that is causing it, and if I start working on that thought process, if I start working on that thought जो मैं बार बार सोच रही हूँ, it will automatically disappear. This is what this chapter is talking about. कि आपकी पेन आपको कुछ बताने के लिए आ रही है. आप सुनो अपनी बॉडी को, listen to it. वो क्या कहना चाह रही है आपसे. हम लोग सुनने के बजाय डॉक्टर्स के पास जाके उसको शट अप करा देते हैं. हाँ जी, पढ़े. Okay. So sometimes people actually want to be sick. Yeah, we've already done this ना, when they don't want to say no. Yeah. देखो, So अगर किसी ने मुझे अपने फंक्शन पे बुलाया और मैं जाना नहीं चाहती हूँ और मैंने उसको नो नहीं बोला, and suddenly I'll have a headache or I will have some problem, that I'll have an excuse for not going. आप में से किसी ने एक्सपीरियंस किया है ऐसा कि आपका कुछ करने का मन नहीं कर रहा और आपको कुछ तकलीफ हो जाती है और आपको बहाना मिल जाता है ना करने का? Have you हम ever? कोई बहाना भी क्रिएट करते हैं. हाँ, वो बहाना क्रिएट करते तो वो हो जाता है वैसे ही. Right. So that is what we are doing. क्योंकि हम अपनी बात, अपने शरीर की बात को सुन ही नहीं रहे. हम अपने आप से डिस्कनेक्टेड है, इतना डिस्कनेक्टेड है अपने आप से. And when we are trying to hold back something, we are not able to say no, because हमारे पास वो सेल्फ एक्सप्रेशन ही नहीं है. क्योंकि हमें बचपन से बोला गया कि नहीं बोलते किसी को. कोई इनवाइट करे तो हमेशा बोलते हैं हाँ जी हम जरूर आएंगे, कोशिश करेंगे आने की, क्योंकि बचपन से यही सिखाया गया है. तो वो कंडीशनिंग जो है उसकी वजह से वी आर सफरिंग. आर यू एबल टू कनेक्ट टू इट नाउ? कि कैसे हमारी बिलीव्स और जो एडल्ट्स हमारे आसपास थे, जैसे उन्होंने हमें कंडीशनिंग दी है, जो हमारे बिलीव्स बन गए हैं, हाउ इज इट इम्पैक्टिंग आवर हेल्थ? या प्लीज रीड. At some point, however, you have to pay attention to what's going on. Allow yourself to listen to your body, because fundamentally, your body wants to be healthy and it needs you to cooperate with it. Think of every pain you have as a teacher telling you that there's a false idea in your consciousness. Something you are believing, saying, doing, or thinking is not for your highest good. I always picture the body tugging at me, saying, please pay attention. When you discover the mental pattern behind a pain or illness, you have a chance to change the pattern through your mirror work and arrest the disease. Are you willing to pay attention to your body and release the need that has contributed to your pain? If so, get started on your mirror work and learn to love your body and heal your pain. Let's affirm, I love my body. I return my body to optimal health
by giving it what it needs on every level. Every level. या सो वन शी सेड कि मेरे को जब भी प्रॉब्लम होती है, कुछ होता है, तो मुझे लगता है somebody is tugging at me. आपने देखा जब छोटा बच्चा मम्मी के साथ मार्केट जाता है या कहीं जाता है और मम्मी किसी से बात करने में लगी हुई है और उसको कुछ चाहिए होता है, तो वो क्या करता है, उसकी कमीज को खींचना शुरू कर देता है, उसने जो कुछ भी पहना होता है उसको खींचना शुरू कर देता है, कीप टगिंग एट इट टू गेट द अटेंशन. होता है ना ऐसा? देखा आपने? करा है Yes, ऐसा ma'am. कभी? बचपन में किया है या आपके बच्चों ने किया है? That you're Yeah. busy at doing something, maybe you're working, maybe you're doing something on the computer, and your child wants your attention, and you're not listening to that child. तो वो आपका कपड़ा खींच के ऐसे आपको खींचना शुरू कर देता है, tugging at you so that you get so that he or she gets the attention. So similarly, जब भी आपके शरीर में कहीं पर भी पेन है, तो just imagine as a child, somebody is tugging at you, your body is tugging at you to get the attention कि मेरी तरफ देखो, मुझे तकलीफ है. Pay some attention to what is the mental pattern जिसकी वजह से ये तकलीफ हो रही है. जब आप अटेंशन दोगे तभी तो आप सोचना शुरू करोगे ना, अच्छा ये किस वजह से हो रहा है. नहीं करोगे तो दवाइयां ही खाते रहोगे. जरा सी तकलीफ होगी डॉक्टर के पास भागोगे, या ऑफ द शेल्फ जो भी डॉक्टर्स जो मिल जाती है, डॉक्टर ये केमिस्ट से, वो दवाइयां खाते रहोगे. Rather than that, start listening to your body. Pay attention to your thought process. What is it that is causing it? Yeah. And affirm जो ये बोल रहे हैं कि मैं अपनी बॉडी से प्यार करता हूँ और आई वॉन्ट टू रिस्टोर इट टू द ऑप्टिमम हेल्थ. उसके लिए मुझे क्या क्या करना है? अगर आपका ये अफर्मेशन होगा तो आप अपनी बॉडी को सुनना शुरू कर दोगे. That is why this affirmation is there. Because once you start affirming, you will start listening to your body at every level. अब ये mental, emotional, health, physical तीनों आ जाएंगे उसमें. Mentally भी, emotionally भी, physically भी. Like I was sharing the other day, my son-in-law always says that मासी आप बहुत overspend करते हो, आप बहुत shopping करते हो. And I realized it and I created an affirmation. I spend sensibly. And you won't be, I'm surprised at my own self. पिछले 3 दिन से I have not overspent a single penny. मेरे को जहां पैसे नहीं खर्चने, मैं नहीं खर्च रही हूँ. अननेसेसरली जाके कुछ नहीं खरीद रही हूँ. ये तो दिवाली है तो मेरे जैसे तो दुनिया भर की चीजें उठा के ले आए घर के लिए. I am not doing that because of that affirmation which I've been doing in front of the mirror, that I spend sensibly. I'm actually spending sensibly. So similarly, when you start saying this, that, you know, I'm listening to body and I want to restore my optimum health at all levels, you will start eating sensibly. You will start listening to your body when your body needs rest. You will not overexert yourself. अगर आपको किसी ने खाने पे बुलाया और आपका बिल्कुल मन नहीं जाने का, तो आप उनसे बोलोगे कि I'm sorry, I will not be able to make it today. Let's keep it for some other day. या आप किसी के घर गए हो और वो आपको जबरदस्ती ठूसने के लिए बोला कि ये भी खाओ, ये भी खाओ. You will say thank you so much, but मैंने ये चीज खा नहीं सकती हूँ ज्यादा. आपने कहा, मैंने टेस्ट कर लिया. Thank you so much. आप ये बोलोगे. ये नहीं कि उसने बोला काजू कतली खाओ तो आप खाते जाओ. एंड अगर आपका टेम्पटेशन भी होगा तो आप उसको टेम्पटेशन को रोकोगे. लाइक आई वाज जस्ट कुछ सोच रही थी मैं कि मैंने कल क्या किया. कल शाम को मैं चॉकलेट्स लेके आई थी. वो एक बड़ा वाला पैकेट आता है दिवाली वाला, मैं वनीता के लिए लेके आई. घर में कोई बच्चे आ जाते हैं तो उनको देने के लिए. उसमें छोटी छोटी पैकिंग्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स में, बटर स्कॉच एंड आमंड और सॉल्ट और पता नहीं क्या क्या है. And I opened all different flavors के छोटे छोटे पैकेट्स एंड छोटे छोटे पैकिंग्स है. आधी वनीता को, आधी मैंने, सारी खाई हमने. And I was just looking at it कि क्या मुझे जरूरत थी वो सारा टेस्ट करने की? I could have just tasted one. वो भी आधी आधी हमने खाई. वो that was good. टेस्ट के लिए तो खानी थी, तो चारों का खाने का क्या मतलब था? So now, you start getting conscious of it.
कि you're abusing your body, you're not listening to your body, you're not being friends with your body. तो मुझे ये एहसास हुआ सुबह कि I could have just had just one bite of it, just taste तो करना था मुझे. So similarly, when you start listening to your body, you will start getting conscious of what to eat, what to drink, how much to sleep, how to keep your body happy, how to keep your mind happy. आप ये सब कॉन्शियस हो जाओगे इन सब चीजों के लिए जब आप ये अफर्मेशन करना शुरू करोगे. That affirmation will start working on you. Yeah, that's what I just wanted to share. Okay, this is what happened with me. Haji, day 10 mirror work exercise. Yes. Your day 10 mirror work exercise. 1. Choose the pain or illness you would like to work on today. Let's say it's heartburn. 2. Stand or sit in front of your mirror. 3. ओके पॉज. अब जिनको हार्ट बर्न नहीं समझ आ रहा तो ये एसिडिटी के लिए बोलते हैं. जब आपको एसिडिटी होती है और आपको लगता है कि आपकी फूड पाइप से लेकर और गले से लेकर और छाती तक जल रहा है, पेट तक जल रहा है, उसको बोलते हैं हार्ट बर्न. या तो अगर एसिडिटी हो रही है, आपको गैस बन रही है बहुत ज्यादा, जैसे होता है ना कुछ खा लिया और जलन हो रही है पेट अंदर स्टमक में और छाती में और गले में, तो क्यों हो रही है. सो लेट्स देखें किस तरह से हमने ढूंढना है वो थॉट पैटर्न. हाँ जी. 3. Look deeply into your eyes and ask yourself these questions. Where did this heartburn come from? What is it trying to tell me? Have I been eating unhealthy foods? Is there something that I'm fearful about? Did I hear some news that I'm not able to digest? Is there a heated situation that I am not dealing with? What or who can't I stomach? 4. Regardless of what pain or disease you are experiencing, you can say these affirmations. I breathe freely and fully. I listen to the messages of my body. I feed my body healthy and nourishing food. I allow my body to rest when needed. I love my amazing body. I am safe. I trust the process of life. I am fearless. Keep repeating the affirmations. 5. Now do some affirmations specifically for the area causing you pain. You can look up mental patterns for pain and particular illness along with corresponding affirmations in my book, Heal Your Body. If you are having stomach problems, for example, you can say, I love my stomach. I really love you. My healthy stomach. I feed you healthy foods and you digest them with joy. I give you permission to be well. 6. Repeat these affirmations 2 or 3 more times. ओके सो आज का मिरर वर्क आपने देखा. क्या करना है आपको. यू हैव टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर और आपको एक ऐसी एरिया अपने हेल्थ का जो अभी आपको यू वांट टू एड्रेस राइट नाउ, यू हैव टू जस्ट लुक एट दैट एंड उसको दिमाग में रखते हुए स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड आस्क दिस क्वेश्चंस कि किस वजह से हो रहा है. लाइक व्हाटएवर क्वेश्चंस आर रिटन ऑन पॉइंट नंबर 3, आस्क दिस क्वेश्चंस एंड यू विल गेट द आंसर्स आल्सो, राइट. एंड उसके बाद आपने जो जो करना है, अफर्मेशंस करनी है. और अगर आपको अपने मेंटल पैटर्न के बारे में पता करना है तो दिस बुक यू कैन हील योर लाइफ वाले में एंड में दिए हुए हैं. एंड इफ यू वांट, आई थिंक अर्चना यू आल्सो हैव दिस बुक ना. Yes, ma'am. So can you click pictures and put it in the group so that people Yes, ma'am. I can do it.
या पीपल I कैन can do चेक it. या। तो उसमें सारे मेंटल पैटर्न्स दिए हुए हैं फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट। अगर किसी को घुटनों में दर्द है या एंकल्स में पेन है या टांगों में दर्द है, तो वो लेग्स का अलग से दिया हुआ है। अगर किसी को बहुत ज्यादा एसिडिटी रहती है, एसिडिटी का दिया हुआ है, डाइजेशन का दिया हुआ है। मतलब फॉर एवरी एलिमेंट, जो मतलब मैक्सिमम एलिमेंट्स हमारी बॉडी में होती हैं, जो अक्सर आपको आसपास अपने दिखाई देते हैं, लोगों को तकलीफें हैं, उन सबके मेंटल पैटर्न लिखे हुए हैं। और उसको मेंटल पैटर्न को चेंज करने के लिए अफर्मेशंस भी लिखे हुए हैं। सो यू कैन हैव अ लुक एट दैट एंड फाइंड आउट व्हाट इज द मेंटल पैटर्न विच इज कॉजिंग दैट पेन इन योर बॉडी। जो आपको तकलीफ है, उस तकलीफ के पीछे आपका मेंटल पैटर्न क्या है और उसके लिए क्या अफर्मेशन आपको करना है। That is available in that, and Archana will be sharing that on the group, so you can refer to that and start affirming that. वो तो affirmation करनी ही है, उसके साथ आप ये journal affirmation भी कर सकते हैं। और अगर ये journal affirmation और उसको दोनों क्लब करके करेंगे तो it's going to be more powerful, right? So this is what is your mirror work exercise for today. Okay, let's see what is your journaling exercise. हाँ जी। Yes, the power is with you. Your day 10 journaling exercise. When you feel pain or discomfort, take time to quiet yourself. Trust that your higher power will let you know what needs to be changed in your life so you can be free of this pain. 2. Visualize a perfect natural setting with your favorite flowers growing in abundance all around you. Feel and smell the sweet, warm air as it blows gently across your face. Concentrate on relaxing every muscle in your body. Ask yourself these questions. How am I contributing to this problem? What is that I need to know? What areas of my life are in need of change? Meditate on these questions and let the answers arise. Write down the answer in your journal. 4. Choose one of the answers you received in step 3 and write an action plan that you can work on. Make changes one step at a time. As the Chinese philosopher Lao Tzu said, the journey of 1,000 miles begins with a single step. One small step added to another can create significant change in your life. Pain does not necessarily disappear overnight, though it may. It has taken time for pain to surface. Therefore, it may take some time to recognize that it is no longer needed. Be gentle with yourself. Okay, so what it is saying Sorry. is that you have to visualize perfect, एक परफेक्ट जगह पे आप बैठे हो, चारों तरफ फूल हैं, खुशबू आ रही है फूलों की, और अच्छी सी खुशबू वाली हवा आपको छू के जा रही है, and at that moment just close your eyes and just calm yourself. जितने भी thoughts आ रहे हैं उनको रोक, उनको मतलब just let them be and just concentrate on your breathing and just ask these questions. How am I contributing to this pain? What is it that I need to do? मुझे क्या क्या एक्शंस लेने चाहिए इसको ठीक करने के लिए? तो जो जो भी आपके दिमाग में आता जाए, उसके बाद उन सबको आपने जर्नल में लिखना है। और हर चीज का आंसर आपको अंदर से ही मिलता है। आपका हायर पावर या आपका जो भी अंदर से आपके अंदर जो सुपर पावर बैठी है, वही जवाब देती रहती है आपको। द ओनली थिंग इज यू हैव टू ट्यून इन। और ट्यून इन करने के लिए आपको अपने आप को काम डाउन करना पड़ेगा, बिकॉज इतना चैटर चलता रहता है दिमाग में कि वो काम डाउन तभी होगा जब आप मेडिटेटिव स्टेट में होंगे। हो सकता है आपको मेडिटेशन करना अच्छा लगता हो, तो आप मेडिटेशन करके देन यू कैन आस्क दिस क्वेश्चन।
or you can simply sit quietly in a place जहाँ पे ज़्यादा शोर ना हो, and just close your eyes. Maybe सब जने सो गए हो तब कर लेना, ताकि आपको शांति मिल जाए. And थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके just tune in and ask these questions. And जो भी questions आए, answers आए, उसका कोई भी एक answer लिख के उसके लिए action point आपको लिखना है. For example, if I say that, for example, अगर मैंने सोचा कि मुझे अपना ideal weight चाहिए, and मुझे answers मिले that you should eat at particular time and you should reduce your portions or you should go for a walk. तो मैं उसका एक action point बना रही हूँ. Action plan बनाया मैंने. Okay, every day I'll go for a walk from this time to this time, and I will eat my breakfast at this time, lunch at this time, and dinner at this time, and I will not let it go beyond this time. कि अगर अब मैंने को dinner 7 बजे करना है तो 7:30 के बाद मैं कुछ नहीं खाऊंगी. Like that. So that is the action plan I'm making based on that. तो इसी तरह से जब आपको आंसर्स मिलेंगे, उसमें से किसी भी एक आंसर को लेके उसके ऊपर एक्शन पॉइंट बनाना है, एक्शन प्लान बनाना है कि आपको उस चीज को करने के लिए क्या क्या करना चाहिए. और जैसे आप उस पे एक्शन लेना शुरू करोगे, you will restore your optimum health, right? तो वही करना है आपको. Okay, so let's read what is your heart thought today. Your heart thought for day 10. I listen carefully to my body messages. The body, like everything else in life, is a mirror of your inner thoughts and beliefs. Every cell responds to every single thought you think and every word you speak. In this world, Pause. So every time, whatever you're saying to yourself, आप जो भी self talk कर रहे हो, based on your beliefs, आप जो भी कह रहे हो, वही आपके body में भी manifest होता है. अगर किसी को ये लगता है कि after certain age बुढ़ापा आना शुरू हो जाता है, तो they will start experiencing it. उनको अपने बॉडी के स्ट्रक्चर में, उनके फेस में, उनको अपने एनर्जी लेवल में वो सब मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगा उनके, because they have started believing that after certain age this is how life is going to be, this is how my body is going to be. Then that thought, what that person has been thinking, is manifested in body. तो उसी तरह से जो भी हम करते हैं, कहते हैं अपने आप से, वो हमारी बॉडी में भी मैनिफेस्ट होता है. तो अगर हम अपने बॉडी की भी बात सुनना शुरू करें, रादर देन उसको सुनाने के, हम उसको हमेशा ही सुनाते रहते हैं ना, बॉडी ऐसी होनी चाहिए, बॉडी वैसी होनी चाहिए. लिसन टू इट कि उसे क्या चाहिए. अगर आपको वो बॉडी चाहिए, उसके लिए उसे क्या चाहिए. सो वंस यू स्टार्ट ट्यूनिंग इनटू योरसेल्फ, जब आप अपने आप के साथ कनेक्ट करना शुरू करोगे, तो आपकी बॉडी आपको बताती है. जब आप ओवर ईटिंग कर रहे होते हो, तो आपकी बॉडी आपको बता रही होती है, बस कर, लालच मत कर, खाली ना एक काजू कतली, ज्यादा खाने की क्या जरूरत है. बट यू ओवरलुक इट, यू डोंट लिसन टू इट, और फिर उसको खा लेते हैं. और खाने के बाद क्या होता है, फिर इंडाइजेशन हो जाता है, ये बहुत ज्यादा शुगर बढ़ जाती है, कुछ हो जाता है, जो भी होता है. बट व्हाट आई एम सेइंग इज, इट्स बिकॉज वी डोंट लिसन टू आवर बॉडी. हमने सुनना कभी सीखा ही नहीं अपनी बॉडी को, बट हमारी बॉडी हमेशा सिग्नल दे रही होती है. अगर आपको हार्ट बर्न हो रहा है जब आप बाहर से खाना खा रहे होते हो, तो आपकी बॉडी एक बार के लिए आपको बोलती है, बट हम सुनते कहाँ हैं. हमें तो वो चटपटी चीजें अच्छी लगती है, हमने तो वही खानी है. बट समवेयर योर बॉडी इज टेलिंग यू डोंट. इट्स गोइंग टू इम्पैक्ट योर बॉडी, इट्स गोइंग टू इम्पैक्ट योर हेल्थ. और जैसे आजकल दिवाली है, सब लेडीज बहुत काम कर रही हैं, सारे घर सफाइयां हो रही हैं, शॉपिंग भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है. बॉडी इज आस्किंग थोड़ी देर रेस्ट कर ले. नहीं बहुत काम पड़ा है, किचन सारी फैली पड़ी है, ये भी पड़ा है, वो भी पड़ा है, कपड़े समेटने वाले पड़े हैं. एंड यू डोंट लिसन टू योर बॉडी एंड यू कीप डूइंग ऑल दिस. उसके बाद क्या होता है, एग्जॉशन. उसके बाद क्या होता है, सर दर्द होना शुरू हो गया, बॉडी एक होना शुरू हो गया. Because you did not listen to your body, because your body wanted rest.
यू आर ओवरडूइंग योरसेल्फ, अपनी बॉडी को सुन नहीं रहे हो, आपकी बॉडी कह रही है। जैसे मैं बीच में आई यूज्ड टू गेट अप एट 3:30 मॉर्निंग में, रात को सोते सोते वही 10-11 तो बज ही जाते हैं, एंड इट स्टार्टेड इम्पैक्टिंग माई हेल्थ। मतलब मेरी उंगली कांपने लग गई, मेरे लेफ्ट साइड हैंड की सबसे छोटी वाली उंगली अपने आप थोड़ी थोड़ी कांपने लग गई। आई गॉट वेरी स्कैर्ड बिकॉज माई मदर हैड दैट प्रॉब्लम एंड शी वाज 85। मैंने कहा ये मुझे क्यों हो रहा है? सो आई स्पोक टू माई डॉक्टर, ही सेड क्या हुआ? ऐसे ऐसे हो रहा है। ही सेड क्या करा तूने? मैंने कहा कुछ नहीं। नींद पूरी हो रही है तेरी? आई सेड नींद तो आई जस्ट डिडंट नो व्हाट टू से। तो आई ही सेड व्हाट टाइम डू यू गेट अप? सो आई सेड 3:30। सेड की 3:30 उठ के क्या करना होता है तुझे? इतनी जल्दी उठने की क्या जरूरत है? नींद तो पूरी करनी चाहिए ना। He was scolding me, and then he said, "Okay, you want to get up in the morning, you want to do meditation and all, you want to connect with your higher self. It's fine, but then sleep at a particular time, ना 9:30, 10 o'clock तक सो जा, ताकि तेरी नींद पूरी हो जाए और तू 4 बजे तक उठ सके, और start getting up at 5 o'clock." So the body was telling me, but I was not listening to it. Somebody else had to tell me that. But now I listen to my body. Whenever I feel tired, I just try and take rest. अब बीच में 15 दिन मैंने नहीं रेस्ट किया बिकॉज आई वॉज वेरी बिजी, घर पे काम चल रहा था, पाठ चल रहा था, गेस्ट आए हुए थे। उसके बाद जो मेरी हालत हुई है मुझे पता है, बिकॉज आई वॉज नॉट लिसनिंग टू माई बॉडी। तो उसके बाद तो असर दिखाएगा ही ना वो अपना, बिकॉज यू आर नॉट लिसनिंग। तो वो लाउडली चिल्लाएगी। आपकी फ्रेंड जब आपसे बात कर रही है, आप नहीं सुन रहे हो, आप थोड़ा सा ऊंचा बोलेगी, नहीं सुना और ज्यादा ऊंचा बोलेगी, और नहीं सुनेगी, उसके बाद भी नहीं सुनोगे तो वो छोड़ के चली जाएगी। She'll say, I don't want this friend in my life. This is what we do with our body. When we don't listen to it, वो थोड़ी और जोर से बोलती है, हम फिर नहीं सुनते हैं। That is when such diseases settle in our body, जो नहीं जाती हैं, क्योंकि हमने उसको सुनना बंद कर दिया, बिल्कुल भी नहीं सुन रहे हैं उसको। इसलिए बोला ठीक है, body also becomes resigned about it. So listen to your body. Yeah, and this is what is the heart affirmation for today. I listen carefully to my body's messages. And आज से ना सुनने की कोशिश करना अपने बॉडी के मैसेजेस। वो कहती है, सुनने की कोशिश करना। हाँ जी। In this world of change, you choose to be flexible in all areas. You are willing to change yourself and your beliefs to improve the quality of your life and your world. Your body loves you in spite of how you may treat it. Your body communicates with you, and you now listen to its messages. You are willing to get the message. You pay attention and make the necessary corrections. You love your body and give it what it needs on every level to bring it back to optimal health. You call upon an inner strength that is yours whenever you need it. Yeah. So आज के बाद से आप अपने बॉडी की बात को सुनने की कोशिश करें। Yeah, because it is always trying to tell you something. And उसके लिए आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, just tune in. And ये every level की जब बात कर रहे हैं ना, it is talking about emotional and mental level also. अगर आप बहुत stressed हैं, बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है आपको, take a break ना, take a break. अपने आप को calm down करने के लिए take a break. अगर काम से ब्रेक लेना है तो काम से ब्रेक ले लो, अपने रोज की भागदौड़ से ब्रेक लेना है तो वो ब्रेक ले लो, और दिन में अगर शांति से कहीं बैठना है just to de-stress yourself, take that break. Listen to your body, listen to your mind, क्योंकि माइंड, इमोशन और आपकी मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ तीनों ही कंसिडर्ड होती हैं हेल्थ में। इमोशनली अगर आप ड्रेन्ड हो रहे हो, अगर कोई रिलेशनशिप आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, you need to tune in and find out what is it that is troubling you.
एंड आपको उसका आंसर भी मिलेगा कि करना क्या है. सुनोगे तब ना. या सो आज से कोशिश करना कि लिसन टू योर बॉडी. आपकी बॉडी आपसे कहना क्या चाह रही है. थक गए हो तो टेक अ रेस्ट. योर बॉडी इज टेलिंग यू 10 मिनट बैठ जाओ. अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा chaos हो रहा है लाइफ में, just take a break, sit down somewhere quietly and just breathe. Just concentrate on your breathing only. और कुछ मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं है. अगर आती है तो करो, नहीं आती है just close your eyes and just concentrate on your breathing. That will calm you down. Yeah. So जो कुछ भी करना है वो करो, but listen to your body. Don't just keep going on and on and on. चले जा रहे. मैंने बहुत किया अपने साथ ऐसा, बहुत किया है. I used to overexert myself. I used to exhaust myself. और फिर मेरी तबीयत खराब होती थी, डॉक्टर से बात करती थी, तो the only answer I used to get to was 3-4 डॉक्टर से मैंने बात करी, तो मेरे को सबका एक ही जवाब मिलता था, you are mentally and physically exhausted. तुझे कोई तकलीफ नहीं है, you're mentally and physically exhausted. और मुझे नहीं समझ आता था कि मैं एग्जॉस्ट क्यों हुई हूँ, पर सुनना ही नहीं है ना. Now start listening to your body and it will start being your friend. Kyunki this is a gift which you have been given, right? Gift of health is keeping me alive. याद है ना सबको? Yes, yes, Yeah. तो ये हेल्थ जो है ये भी एक गिफ्ट है, और हम अपनी गिफ्ट्स को कितना संभाल के रखते हैं ना. तो जरा संभाल लो इसको और इसकी बातें सुनना शुरू करो. Yeah. So today's meditation. yes. One Your, second. One second. Meenu, would you like to read the meditation in meditative way? Yeah, okay, I will. Is it okay with you, Almas? yeah, no problem. Okay, fine. Yeah, Meenu, you can start reading. I want Yes. everybody to sit straight, close your eyes, and just listen to what is being said. Right. So close your eyes, take a long deep breath in. Just be with your breath. Take 3 long deep breaths. Feel the depth of your breath. Be with your own self. I enjoy the foods that are best for my body. I love every cell of my body. I make healthy choices. I have respect for myself. I look forward to a healthy old age because I take loving care of my body now. I look forward to a healthy old age because I take loving care of my body now. I look forward to a healthy old age because I take loving care of my body now. I am constantly discovering new ways to improve my health. I return my body to optimum health by giving it what it needs on every level. Healing happens. I get my mind out of the way and allow the intelligence of my body to do its healing work naturally.
I have a special guardian angel. I am divinely guided and protected at all times. Perfect health is my divine right, and I claim it now. Perfect health is my divine right, and I claim it now. Perfect health is my divine right, and I claim it now. I am grateful for my healthy body. I love life. I am the only person who has control over my eating habits. I can always resist something if I choose to. Water is my favorite beverage. I drink lots of water to cleanse my body and mind. Filling my mind with pleasant thought is the quickest road to health. Filling my body, my filling my mind with pleasant thought is the quickest road to health. I am grateful to my body. I love my body. I love my body. I love my body. Thank you, thank you, thank you. Be thankful to your own body and come out when you feel like. Thank you. Thank you, Meenu. Thank you, Ji. Okay, so अभी आपने मेडिटेशन में क्या सुना है कि आपने कॉन्शियसली खाना है whatever is good for you, and water is your favorite beverage which cleanse your body and your mind, and you know how to आपने अपने पानी को कैसे चार्ज करना है. You can say thank you to it before drinking it, for cleansing your body, for giving you good health, and eat mindfully कि आपको क्या खाना है, which is what is good for your body. And this is going to be a very testing time for that, because Diwali पे तो जो है वो खाते जाओ. So, and if you start being conscious of it right now, if you listen to your body during this period, I think you can do it any time of your life. And so सब लोग कहते हैं ना दिवाली पे ये बुक क्यों शुरू हुई है, ये इसलिए शुरू हुई थी. Yeah, so start eating consciously and mindfully what is good for your body, because you love your body. Yeah. Hanji, anybody wants to say anything? आज के सेशन के बारे में किसी को कुछ कहना है? No, ma'am. It's only that since Diwali is coming, we will start stuffing our stomach with all the Diwali sweets. That's So what we I've need said. to be careful That's what I while, said. This is the testing time for it. yeah, And if you can do it now, you can do it anytime, everywhere, anywhere. exactly. Yeah. So the only thing you have to remember is that you have to listen to your body. Whatever Yes. is good for your body. Yes. Only I that. Yeah, I still read that line. Thank you for the gift of health that is keeping me alive. Yes. I was telling always you na, keep that. I was telling you Yeah. मैंने अपने bathroom mirror पे लगाया हुआ, तो my niece came and my nephew's children came, and they were 6 and 3. They were all reading it in the bathroom. And my niece was telling me, Masi, your positive affirmation, even our children have started reading it now. Yeah.
So that is now become by heart. It's imbibed in your mind. So you keep Yeah. telling that most of the times. Yeah. And drink a lot of water. Water is something actually 70% of our body is water ना. तो जब हम पानी ज्यादा पीते हैं तो हमारे बॉडी को क्लेंस करता है वो, और बॉडी को भी क्लेंस करता है और माइंड को भी क्लेंस करता है. अभी माइंड को कैसे क्लेंस करता है? बिकॉज एवरी टाइम यू आर ड्रिंकिंग वाटर, Yeah. charge it with this thought that this water is cleansing your system, is giving you peace, giving you nourishment. So when you charge your water with these thoughts, because water सबसे ज्यादा absorb करता है एनर्जी को, जो भी आप बोलते हो वो absorb करता है उसको, and जब उसको आप इस तरह से चार्ज करके पीते हो, it gives you extra benefit, right? Yeah, actually, I saw that video somewhere, Yeah, in that Japanese it's showing, Japanese guy. yeah, like you know, when you are not keeping well, you go to the doctor gives you pills and all. You take that pill and you drink water, but it is not the pills that is working, it is actually the water which is working in your body to heal your whatever disease you have. So water is very important, even important than the medicines that we are taking. Yeah. You know, in naturopathy, they say if you drink 4 liters of water every day, it actually cleanses your body and toxins रहते ही नहीं है body में. अगर regularly आप 4 लीटर पानी रोज पीते हो तो you will not need medicine. It will keep your body healthy. So water is very important. हमारे body के एक एक सेल में पानी है, एक एक सेल में trillions of cells we have in our body. Just imagine. And अगर आप उसको चार्ज करके पीते हो, अच्छी अच्छी बातें बोल के पीते हो, तो वो पूरी बॉडी में जहां जहां पानी है सब जगह पे वो जाके उसको इम्पैक्ट करता है. So it's going to give that positive affirmation. You can affirm before saying some drinking water. ये affirmation ही तो है जो मैं बोल रही हूँ. That this water is going to give me health. This water is going to nourish me. This water is going to cleanse me. These are affirmations, na? Exactly. Anything which we are saying is affirmation. The only thing is we're learning to say positive affirmation. Negative तो हम बोलते ही रहते हैं, right? Right. Yeah. Anybody else wants to say anything? किसी को कुछ कहना है? क्या वरुण? सबने कल का असाइनमेंट सबने करा था? मैंने पूछा नहीं, मेरे को पता था लोगों ने करा नहीं होगा. नहीं, मैंने असाइनमेंट किया था कल का. तो ना दिस वन मोर थिंग आई वांट टू शेयर इज कि ना कल नंदिनी और मैं रात को मूवी देखने गए थे. अच्छा. तो वहां पे ना थिएटर में कोई था नहीं, ओनली वी टू वर देयर. अच्छा. प्राइवेट स्क्रीनिंग हो रही थी. So these PVR people said कि भैया सिर्फ आप 2 लोग ही हैं, तो 2 लोगों में तो हम शो चलाते नहीं हैं, बिकॉज शो चलाने में एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाते हैं. Yeah. सिर्फ 2 लोगों के लिए हम चलाएंगे नहीं. बट आई वाज क्लियर भी हम तो घर से स्पेशली आए हैं, तो टाइम निकाल के आए हैं, तो हम तो मूवी देखकर ही जाएंगे. So I spoke to the manager of PVR. I requested him, and तो मतलब काफी देर बातचीत हुई हमारी. तो I enrolled him in giving good customer service to me because I am a customer of PVR. और मैं स्पेशली अब घर से टाइम निकाल के आया हूँ, तो लाइक तो बाकी लोग आए नहीं आए, मुझे उससे क्या मतलब है? अब मेरे को तो सर्विसेज दो. तो आई एनरोल्ड हिम. तो कल रात को ना 9 बजे का शो सिर्फ नंदिनी और मेरे लिए चला. क्या बात है. Only we two were there in the entire body. Yeah. I was so happy, you know, कि I listened to my child. Like मेरे अंदर का तो child है, उसको मूवी देखनी थी, तो मैंने उसको दिखाई है. Good job. That's really good. Yeah, but enrolling PVR people for playing it only for 2 people is a big thing, huh? Right? Normally ऐसा होता नहीं है कि you know कि 2 लोगों के लिए, सिर्फ 2 लोगों के लिए ये पूरी मूवी चलाए. ये शो कैंसिल कर देते हैं. Yeah, obviously. They at the most he would have said you take your money back and all that, you know, refund ले लो. हाँ. Yeah.
Good. So keep listening to your child and listen to your body also. Now onwards, start listening to your body. And Archana, please share that screenshots of those pages so that Sure, people can find what is the mental pattern they have for the kind of ailment they have in their body, so that Yes, they can start working on it. Right? Well, there is one more thing I want to ask you. Just like thoughts, बहुत सारे आते हैं हमारे को. Like कभी-कभी ना, like I want to have छोले भटूरे, but I know that it will impact my stomach. Yeah. But फिर भी मैं उसको खा लेता हूँ और then I regret. तो उसके लिए क्या करें? तो अगर आपको छोले भटूरे खाने का मन कर रहा है, तो मन कर रहा है ना, बॉडी आपसे बोल रही है मत खा, तो लिसन टू योर बॉडी. Okay. दिस इज द चैप्टर इज टेलिंग यू कि हम लोग अपनी बॉडी की बात सुनते ही नहीं है. हम अपने मन से चलते हैं, हमारा जो मन कर रहा है वो कर रहे हैं. अब वो मन जो कह रहा है वो कर रहा है, वो कहाँ से आ रहा है? कहीं ना कहीं से तो सुना था ना हमने, छोले भटूरे बहुत टेस्टी होते हैं. Yes. खा लेने चाहिए, बहुत अच्छे लगते हैं. बॉडी कह रही है नहीं यार मेरे लिए अच्छे नहीं है, तो नहीं यार अच्छे लगते हैं. वो जब हमने वहां खाए थे ना, सबने कहा तो बहुत टेस्टी होते हैं इसके छोले भटूरे, सच में बहुत अच्छे थे. तो सबने कहा तो बहुत अच्छे हैं, तो अच्छे ही हैं, तो अच्छे इतने टेस्टी होते हैं, क्यों ना खाऊं मैं? बट बॉडी सेइंग डोंट ईट, इट्स नॉट गुड फॉर यू. टेस्ट करना है, जस्ट टेक वन बाइट ना. टेस्ट तो एक बाइट में भी आ जाता है, जरूरी थोड़ी 2 भटूरे खाने से आएगा. Right. काजू खाने का मन कर रहा है सॉरी, काजू खाने का मन करा तो एक काजू मुंह में रखो और उसका टेस्ट ले लेके खाओ उसको. उसके बाद फिर मन कर रहा है फिर एक रख लो मुंह में. जरूरी थोड़ी 6 काजू इकट्ठे मुंह में डाल के चबाने हैं. Right. टेस्ट लेना तो एक का भी टेस्ट ले सकते हो ना. Right. डोंट डिप्राइव योरसेल्फ, बट लिसन टू योर बॉडी आल्सो. Okay. I want to say something. मैंने कहीं सुना था, सॉरी टू इंटरप्ट हियर, जस्ट फॉर द वरुण. ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, सॉरी. हाँ कोई बात नहीं ना. बोलो. 2 चीजें. एक तो कहावत है कि अगर आप खराब चीज खा रहे हो जो आपको पता है खराब है, तो ऐसे खाओ कि इतना खाओ कि मुंह को तो स्वाद है लेकिन पेट को ना पता चले. समझ में आया? जैसे आप बोल रहे थोड़ा सा खाओ. अभी मेरे को काला जामुन बहुत पसंद है, एंड आई टेक ओनली 1/4 एवरी डे. दैट्स इट, एंड आई स्टॉप देयर. या बिकॉज़ द टेस्ट तो आ ही गया ना. टेस्ट आ गया. या टेस्ट के लिए तो खाना है, पेट भरने के लिए थोड़ी खाना है उसको. या बट हम लोग जब खाना शुरू करते हैं, हमें जो चीज अच्छी लगती है, we don't stop at one ना. we don't stop. या प्रॉब्लम इज दैट ओनली, क्योंकि हम अपनी बॉडी की बात सुनते ही नहीं है. अगर टेस्ट के लिए खाना है तो टेस्ट के लिए, तो अगर आप बिस्किट भी खा रहे हो तो यू कैन हैव जस्ट 1 बिस्किट विद टी ना. जरूरी थोड़ी पूरी प्लेट भर के खानी है बिस्किट. जितने सामने रखे सारे प्लेट चट होनी चाहिए. वो जब हम चाय पी रहे होते हैं, किसी से बातें कर रहे होते हैं साथ साथ में, तो एक के बाद एक कितने बिस्किट खा गए हमको खुद को ही नहीं पता होता. But if you start listening to your body, you will not pick more than 1 biscuit at all. You will enjoy that 1 biscuit. उसी को थोड़ा थोड़ा करके खा के पूरी चाय के साथ खा जाओगे. मट्ठी खाने का मन कर रहा है तो तुम आधी मट्ठी खाओगे कि टेस्ट आ गया बस और नहीं खानी है मुझे. This is what you need to learn. कि बॉडी को हमने सुनना है. बॉडी कह रही है कि मत खा, तेरी सेहत के लिए अच्छा नहीं है. कोक मत पी, it's aerated water, it's not going to give you anything any benefit to your body. It's only going to add to sugar. बट आपका मन कर रहा है कोक पीने का या पेप्सी पीने का, जस्ट टेक 2-3 सिप्स ना. हो गया. टेस्टी तो करना है. वरुण, अपने खाने के साथ ना हरी मिर्च का अचार रखा करो तो याद आ जाएगा कितना. Okay. And it's not only for Varun, it's for everybody. Yeah, it's for हम सब करते हैं. बताओ आप में से कौन ऐसा है जो नहीं करता ऐसा?
एक बंदा बता दो मुझे, कोई जना बोल दो कि नहीं करता, मैं नहीं करता है, मैं नहीं करती। एवरीबॉडी डज दैट यार, क्योंकि हमने अपनी बॉडी की बात सुननी कभी सीखी ही नहीं है ना। तो आज से कीप लिसनिंग टू योर बॉडी। बॉडी सिग्नल्स देती है, बॉडी आपको बता रही होती है, पर हम सुनते नहीं है, क्योंकि हमने ट्यूनिंग ही नहीं किया हो अपने साथ। जब तक आपकी अपने साथ ट्यूनिंग नहीं होगी तो आप कैसे सुनोगे ना। हमारे आसपास लोग भी ऐसे ही होते हैं, देन वी एंड अप गिविंग इन टू आवर टेम्पटेशंस। हमारे साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे, वी आर जस्ट नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी आर जस्ट गिविंग एक्सक्यूजेस कि उसने वो सब लोग खा रहे थे तो मैंने भी खा लिया। अरे बॉडी तो तुम्हारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तुम्हारी है ना टुवर्ड्स योर बॉडी। मेरे साथ एक कोलीग था एंड ही लव्स कैरेट केक, तो वो एक कैरेट केक की स्लाइस पूरा महीना उसके फ्रिज में चलाता था, लाइक वेरी लिटिल स्पून। इमेजिन करिए वन स्लाइस ऑफ केक कोई बंदा पूरा महीने में खत्म करे, हाउ डिफिकल्ट इट इज ना फॉर पीपल लाइक अस। वो एक टाइम पर कम से कम एक टाइम पे कम से कम 3 स्लाइस खा जाते हैं केक के। नहीं, मैं तो अब करना सीख गई हूँ। आई टोल्ड यू मैं No, I know that. What I'm saying is, in general, we all are doing that only. ड्राई फ्रूट, अब जैसे सर्दियां ड्राई फ्रूट खाने का मन करता है, तो ड्राई फ्रूट भी हम 1 या 2 या 3 पीसेस में नहीं रुकते हैं, हमें मुट्ठी भर के चाहिए। और बोलते हैं कि बॉडी को भी जरूरत है, ठंड है। हाँ, दैट सी एक्सक्यूजेस तो कुछ भी देंगे ना हम, बट is your body asking for it? If your body is asking for it, sure. बट वो ट्यून इन करना शुरू करो अपनी बॉडी के साथ कि बॉडी क्या चाह रही है। बॉडी कह रही है बस स्टॉप, देन स्टॉप ईटिंग। ये नहीं कि प्लेट में है यार वेस्ट हो जाएगा। योर स्टमक इज नॉट अ डस्टबिन। डोंट ट्रीट योर स्टमक एज अ डस्टबिन। अगर एक्स्ट्रा डाल भी लिया है, नहीं खाया जा रहा, डोंट ईट इट कि वेस्ट हो जाएगा। अरे वेस्ट हो जाएगा इज बेटर देन गेटिंग सिक। अगली बार से कम डालोगे ना, कम से कम इतनी समझ तो आ जाएगी कि मेरा इतना वेस्ट हो गया था खाना उस दिन, मुझे कम डालना चाहिए। सो आज से सिर्फ स्टार्ट लिसनिंग टू योर बॉडी, बिकॉज ये वाला पीरियड जो है ना, दिवाली वाला, अगर इसको कॉन्कर कर लिया ना, तो मतलब समझ लो आप पूरी जिंदगी के लिए आपने बस सीख लिया कैसे करना है। राइट? इट्स चैलेंज फॉर मी ऑल्सो, इट्स नॉट ओनली फॉर यू। बाय द वे, मैं तो बता रही हूँ मैंने चॉकलेट कैसे खाई कल रात। इतनी चॉकलेट्स थी और आधी खाई है। अपनी तरफ से बहुत कंट्रोल किया हुआ है। देन व्हाई 4? एक टाइम पे एक ही फ्लेवर टेस्ट किया जा सकता था ना, 4 फ्लेवर्स टेस्ट करने का कोई तुक ही नहीं थी। So it's not that only you are doing, even I am doing it. So it's a testing time for me also. घर में दुनिया भर की मिठाइयां आई हुई हैं और ये और वो, but yes, if I start listening to my body, maybe I will be able to control. हो सकता पूरा ना कर पाऊं, हो सकता कुछ कर पाऊं, जितना भी कर पाऊं good for me ना। So similarly, don't make yourself wrong अगर नहीं कर पाओ तो। ये मत बोलना यार मैं तो हूं ही ऐसा, मेरे बस का नहीं, ये मत बोलना, वो फिर आई एम नॉट गुड इनफ वाली फाइल में जाएगा। जस्ट से आई एम लर्निंग इट। देखा मैंने आज इतना कर लिया, आज इतना कम खाया तो कल और कर लूंगा। स्टार्ट मोटिवेटिंग योरसेल्फ, स्टार्ट पैटिंग योरसेल्फ, एक्नॉलेजिंग योरसेल्फ इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग योरसेल्फ। डज इट मेक सेंस? कल हम पता नहीं परसों बात कर रहे थे ना, एवरी मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इट इज लाइक आई एम ट्राइंग माय बेस्ट, आई डिड माय बेस्ट, राइट? आई थिंक दैट्स अनदर पार्ट ऑफ इट। या सो मिरर वर्क जरूर करना, एंड मिरर के सामने खड़े होकर अगर अपनी बॉडी से बात करोगे तो थोड़ा सा याद रहेगा आपको, और बॉडी को भी
लगेगा कि हाँ आप यू रियली मीन इट. इट्स जस्ट नॉट दैट आपने सुना और आपने छोड़ दिया वहीं पे. See it in your eyes and then say it to your body. That will make some connection. ठीक है, चलो enjoy your Diwali. छोटी दिवाली की सबको बहुत बहुत बधाई हो. And tomorrow's Diwali and we will meet in the morning. Because Diwali तो रात को है ना. That is no excuse for not attending the session. Okay? Yeah. And listen to your body and listen to the child inside you. अच्छे से कपड़े पहनो, अच्छे से तैयार हो, जो मन करता है वो करो, जो as a child you used to do दिवाली पे. और वो फुलझड़ियां चला लेना जो बचपन में चलाते थे. मेरे को वो सांप वाला मिल गया ना तो मैं जरूर चलाऊंगी. और चक्री के ऊपर छलांग, वो जो you know you keep your jumping on the नीचे चला के उसके ऊपर. तो ये सब जरूर करना जो बचपन में करते थे. अपने बच्चों के साथ बेशक करना, but do it. Bring that inner child out. उसको भी लगे कि आप उससे प्यार करते हो. ठीक है जी? Okay, bye. See you tomorrow. Thank you, ma'am. Thank you. Bye. Bye. Happy Diwali to all. Happy Diwali to all.